حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کی وہ شخصیت ہے جس کے ایمان لانے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی، جس کو جنت کا ٹکٹ دنیا میں مل گیا، جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا۔ آؤ اس عمر کی میں تمہیں کہانی سناتا ہوں۔ جب آپ کو خنجر لگا، جب آپ زخمی ہوئے، جب آپ کا وقت آخر آیا، جب آپ کی زندگی کا سورج غروب ہوا، جب آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہے تھے، تو آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میرے سر کو جلدی جلدی زمین پہ رکھو، جلدی کرو میرے سر کو مٹی پہ رکھو۔ جب آپ کا سر زمین پہ رکھا گیا، جب آپ کا سر مٹی پہ رکھا گیا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گال مبارک کو مٹی پہ رگڑ کر خود کو کہنے لگے، اے عمر، اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا پھر تو مارا گیا نا۔ یہ ہے عمر کی عاجزی، یہ ہے عمر کی انکساری، جس کو دنیا میں جنت کا ٹکٹ دے دیا گیا، جس کو جنتیوں کا سورج کہا گیا ہے، اس عمر کی عاجزی کی کہانی سنا رہا ہوں۔ آپ کا جب وقت آخر آیا تو آپ نے کہا میرے سر کو زمین پہ رکھو، مٹی پہ رکھو۔ جب آپ کا سر مٹی پہ رکھا گیا تو آپ نے اپنی گالوں کو مٹی پہ رگڑ کر خود کو کہنے لگے، عمر، آج رب سے ملاقات کا دن ہے، اگر رب نے تجھے معاف نہ کیا، آئے تو پھر ہلاک ہو گیا، تو پھر مارا گیا۔ عمر تو وہ ہیں جن کی بخشش انہیں دنیا میں ہی سنائی گئی، اس کے باوجود بھی عاجزی کا یہ حال ہے کہ جو فرما رہے ہیں، اے عمر تو لٹ گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمجھدار ہے وہ جس نے موت کو کثرت سے یاد رکھا، جس نے آخرت کے لیے تیاری کی، جس نے موت کے لیے تیاری کی۔ دنیا کا سب سے بڑا سمجھدار انسان ہے وہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رونے لگ گئے۔ 62 سال کی عمر ہے، خلافت کے آخری ایام ہیں، آج ایسے ہی بلا وجہ بیٹھے بیٹھے اچانک رونے لگ گئے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، کہا پتہ کرو آج تمہارے ابو جی بیٹھے بیٹھے بلا وجہ رونے کیوں لگ گئے ہیں۔ صاحبزادے آئے، عرض کی ابا حضور کیا وجہ ہے، کیوں رونے لگ گئے ہیں؟ فرمایا گھر کے سب لوگوں کو میرے ساتھ جمع کرو۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ اب گھر کے سارے لوگوں کو اپنے ارد گرد بٹھا کے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ آج جب میں مسجد سے نکلا تو میرے کریم نبی کے سچے صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے، بڑا ہی اچھا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جی پھر اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ کہا بیٹے رو اسی لیے رہا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ باہر والوں کے لیے تو میں اچھا ہوں، باہر والے تو مجھے اچھا کہتے ہیں، رو اسی لیے رہا ہوں کہ گھر والوں کے لیے بھی اچھا ہوں یا نہیں ہوں، اور کہیں گھر والوں سے کوتاہیاں تو نہیں کرتا رہا، کہیں آپ لوگوں کے حقوق پامال تو نہیں کرتا رہا۔ آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو کہنے لگی مجھے آپ پر شکوہ ہے حضرت۔ آپ کانپ گئے، کہا وہ کون سا شکوہ ہے؟ کہا میرے سرتاج آپ کا جاہ و جلال بھی اتنا تھا کہ میں تو بات بھی نہ کر سکی، میں تو بتا بھی نہ سکی۔ کہا میرے سرتاج آپ سارا دن مسجد میں گزارتے رہے اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزارتے رہے۔ اے میرے سرتاج شوق تو میرے اندر بھی تھا کہ میرا سرتاج، میرا شوہر میرے ساتھ بیٹھتا، مجھے کہیں لے جاتا۔ میرے سرتاج میں نے تو آپ کی زندگی میں کچھ نہیں دیکھا، اور آپ کا جاہ و جلال دیکھ کر آج تک میں نے یہ شکوہ آپ کو بتایا ہی نہیں۔ کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے عمر کو معاف کر دے۔ یہ معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی، بلکہ یہ معافی اپنی کمی کی مانگی جا رہی، اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کرنا بھی اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کا شیوا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو نا۔ کہا نہیں ایسے معاف نہیں کروں گی، میری ایک شرط ہے وہ پورا کرنا پڑے گی۔ اچھا کون سی شرط ہے؟ کہنے لگی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب آپ کے لیے جنت میں جانے کا حکم دے گا تو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے مجھے بھی ساتھ جنت میں لے کے جانا پڑے گا، یہی میری شرط ہے۔ اور میرے سرتاج یہی میری شرط ہے کہ قیامت کے دن آپ کو سفارش کرنا ہوگی کہ یا اللہ یہ خاتون میرے کپڑے دھو کے دیا کرتی تھی، میری عزت اور آبرو کی حفاظت کیا کرتی تھی، اور میرے بستر کو پاک رکھا کرتی تھی۔ میرے سرتاج مجھے بتاؤ
हाँ कयामत के दिन मेरी सिफारिश करोगे ना। ये सुनकर हजरत उमर फरमाने लगे कि रब ने अगर उमर को अपने फजलो करम के सदके जन्नत दी, परेशान ना हो, तेरे बगैर जन्नत नहीं जाऊंगा, तुझे भी साथ लेके जाऊंगा। ये है हजरत उमर की आजिज़ी, ये है इनकी सारी कि हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक तंग गली से गुजर रहे थे। गली थी तंग, लोगों का हुजूम था। आप जा ही रहे थे कि आगे एक बुजुर्ग आ रहा था। आपका पांव उस बुजुर्ग के पांव पर पड़ गया। जैसे ही आपका पांव उस बुजुर्ग के पांव पर गया ना, तो उस बुजुर्ग ने चीख मारी। वो जानता नहीं था कि ये शख्स कौन है। वो बुजुर्ग जानता नहीं था कि ये शख्सियत किस मकाम की मालिक है, किस मर्तबे की मालिक है। कहने लगा तुम अंधे हो, देख नहीं सकते, तुम्हारी आंखें नहीं है कि तेरा पांव मेरे पांव पर चढ़ गया है, क्यों चढ़ गया है, और देख के नहीं चल सकते। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो कर कहने लगे मियाँ मुझे पता नहीं था कि मेरा पांव आपके पांव पे चढ़ गया है, मैं नहीं जानता था, अनजाने में ये काम हो गया है, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। जब तक तू उमर को माफ नहीं करेगा, उमर का रब भी उमर को माफ नहीं करे, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। ये वो शख्सियत मुआफी की खैरात तलब कर रही है एक आम आदमी से 24 लाख मुरब्बा मील का शहनशाह है, जिसके बारे में मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर ही होता, जिसको मेरे नबी ने रो रो कर मांगा है। ये है उमर की आजिज़ी, ये है उमर की इनकिसारी। कि आप एक दिन नमाज पढ़ रहे थे कि इमाम साहब ने दौराने नमाज तिलावत बयान की, जिसका तर्जुमा ये था कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हारी छोटी सी छोटी नेकी भी तुम्हारे सामने रख देगा, छोटी सी छोटी गलती तुम्हारे सामने रख देगा, फिर अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा। ये तिलावत सुनते ही सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक चीख मारी, फिर रोकर जमीन पे गिर पड़े। आप बेहोश हो गए। नमाज के बाद जब आपको होश आई तो लोगों ने पूछा हजरत आप रोकर जमीन पे क्यों गिर पड़े? तो आपने फरमाया मियाँ रोया इसलिए हूँ कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन छोटी सी छोटी गलती का हिसाब लेगा, उमर तो एक पल का हिसाब भी नहीं दे। या अल्लाह हमें हजरत उमर जैसा कोई हुक्मरान दे दे, हजरत सईद बिन आमिर जैसा कोई गवर्नर अता कर दे जो तेरे नबी की उम्मत के दर्द सुने, दुखड़े सुने। कोई ऐसा हुक्मरान अता कर दे जो जगह जगह ये ऐलान करे कि मेरी हुक्मरानी में अगर कोई प्यासा कुत्ता भी मर गया तो उसका भी मुझे हिसाब देना होगा। मेरे करीम रब कोई ऐसा हुक्मरान अता कर दे, कोई ऐसा गवर्नर अता कर दे। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत सईद बिन आमिर को किसी इलाके का गवर्नर मुंतखब कर दिया। 6 माह बाद हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उस इलाके में गए तो आपने लोगों को बुलाया, साथ में गवर्नर हजरत सईद बिन आमिर को भी बुलाया। सबको बुलाकर हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों से फरमाने लगे कि हजरत सईद बिन आमिर की कोई शिकायत हो तो मुझे बताएं। हजरत सईद बिन आमिर को मैं यहाँ का गवर्नर मुंतखब करके गया था, अगर इसकी कोई शिकायत हो तो मुझे बताएं। अब गवर्नर हजरत सईद बिन आमिर लोगों के सामने खड़े हैं। हजरत उमर फारूक पूछ रहे हैं इस गवर्नर की कोई शिकायत हो तो मुझे बताई जाए। ये सुनकर लोगों ने कहा या अमीरुल मोमिनीन इस गवर्नर की 4 शिकायतें हैं हमारे पास, 1 भी नहीं 2 भी नहीं, कितनी 4 शिकायतें हैं। उनमें से पहली शिकायत ये है कि जब ये नए नए आए थे तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप मस्जिद में बैठ जाते थे और लोगों के मसाइल सुना करते थे। कुछ वक्त गुजरने के बाद हाल ये है कि अब आप नमाज पढ़ के घर चले जाते हैं और 7-8 बजे वापस आकर हमारे मसाइल सुनते हैं। पहली शिकायत तो ये है। जब नए नए आए थे तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद वहीं बैठ जाते थे, लोगों के मसाइल सुनते थे। वक्त गुजरने के बाद अब का हाल ये है कि किबला गवर्नर साहब फजर की नमाज पढ़ने के बाद घर चले जाते हैं, 7-8 बजे वापस आकर हमारे मसाइल सुनते हैं, तब तक हम इंतज़ार में रहते हैं। कहा या अमीरुल मोमिनीन दूसरी शिकायत ये है कि हमारे गवर्नर साहब सिर्फ दिन को ही मुलाकात करते हैं, रात को तो अपना चेहरा ही नहीं दिखाते, रात को तो मिलते ही नहीं है, रात को तो किसी की बात ही नहीं सुनते, सिर्फ दिन को ही मुलाकात करते हैं। लिहाजा हमें कोई ऐसा गवर्नर दें जो रात को भी हमारी बात सुने, रात को भी हमारे मसले हल करे। तीसरी शिकायत यह है कि हमारे गवर्नर साहब ने हफ्ते में 1 दिन मुकर्रर कर रखा है,
उस दिन तो ये किसी से भी नहीं मिलते, उस दिन तो ये किसी से बात ही नहीं करते, किसी से मुलाकात ही नहीं करते। लिहाजा हमें कोई ऐसा गवर्नर दें जो 24 घंटे हमारे मसले सुने। हमारे गवर्नर साहब ने हफ्ते में एक दिन मुकर्रर कर रखा है किबला, उस दिन तो ये अपना चेहरा दिखाते ही नहीं, किसी की बात सुनते ही नहीं, किसी से मुलाकात करते ही नहीं। और चौथी शिकायत ये है कि हमारे गवर्नर कभी कभी रोते हैं तो इतने रोते हैं कि बेहोश हो जाते हैं। या अमीर अल-मोमिनीन, आपने तो हमें कोई दीवाना बंदा दे दिया है, और कोई दीवाना बंदा गवर्नर बना दिया है, कोई होश वाला बनाए। ये कभी कभी रोते हैं, बेहोश हो जाते हैं, फिर हमें इन्हीं उठाना पड़ता है, इन्हीं पानी पिलाना पड़ता है, इन्हीं होश में ले आना पड़ता है। या अमीर अल-मोमिनीन, कोई ऐसा बंदा दें जो होश व हवास वाला हो। या अमीर अल-मोमिनीन, बस यही 4 शिकायतें हैं हमारे गवर्नर में, कोई ऐसा गवर्नर अता करें जिनमें ये शिकायतें ना हों। अब लोगों के सामने, अवाम के सामने हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, गवर्नर साहिब सईद बिन आमिर, क्या लोगों ने ठीक कहा है? क्या लोगों ने आपके बारे में ये शिकायतें ठीक की हैं? गवर्नर ने कहा, जी हुजूर, लोगों ने ठीक कहा है, हुजूर लोगों ने ठीक ही कहा है। मैंने तो पहले ही आपको कहा था कि मैं इस चीज़ के काबिल नहीं हूँ, आपने तो ज़बरदस्ती ही मुझे गवर्नर बना दिया। सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सईद, अब आप सरकारी नुमाइंदे हो, सवालों के जवाबात तो देने पड़ेंगे। अब इन सवालों के जवाब तो देने ही होंगे, आप सरकारी नुमाइंदे हैं। कहा, जी हुजूर पूछिए। फरमाया, बताओ फजर की नमाज पढ़ने के बाद लोगों की बातें क्यों नहीं सुनते, लोगों के मसले क्यों नहीं सुनते? फजर की नमाज पढ़ने के बाद घर चले जाते हो, 7-8 बजे आते हो, लोग आपका इंतजार करते रहते हैं। फजर की नमाज के फौरन बाद लोगों के मसले क्यों नहीं सुनते? कहा, हुजूर अगर पर्दे ना खोले जाते तो अच्छा था, अगर आप बार बार इसरार फरमा रहे हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ। कहा, हुजूर दरअसल मेरी बीवी बीमार है, वो बेचारी टांगों से माजूर है, मैं गरीब सा आदमी हूँ, घर में कोई और काम करने वाली है नहीं, मैं फजर की नमाज पढ़ने के फौरन बाद घर जाता हूँ, घर में झाड़ू देता हूँ, झाड़ू देने के बाद नाश्ता अपने हाथों से तैयार करता हूँ, खाना पकाता हूँ, खुद भी खाता हूँ, अपने हाथों से अपनी बीवी को भी खिलाता हूँ, वो बेचारी टांगों से माजूर है, बीमार है, हुजूर इसीलिए देर हो जाती है। लोगों ने सईद बिन आमिर का पहला सवाल सुना, गर्दनें झुक गईं। सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा फिर बताओ, दिन को मिलते हो, रात को क्यों नहीं मिलते, रात को कहाँ छुप जाते हो? कहा, हुजूर दिन को इन लोगों के दुखड़े सुनता हूँ, रात को घर में मुसल्ला बिछा के अपने करीम रब को ये दुखड़े सुनाता हूँ। हुजूर दिन को इनके दुखड़े सुनता हूँ, इनके दर्द सुनता हूँ, इनकी फरियादें सुनता हूँ, जब रात का वक्त आता है तो घर में मुसल्ला बिछा लेता हूँ, ये सब दुखड़े, ये सब दर्द अपने करीम रब को सुनाता हूँ, इसलिए रात को इनके साथ मुलाकात नहीं कर पाता। ये सुनने के बाद हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें छम छम बरसने लग गईं। आपने फरमाया, अच्छा फिर बताओ कि हफ्ते में आपने एक दिन मुकर्रर कर रखा है, उस दिन आप मिलते ही नहीं, क्या वजह है? तो ये सुनकर हजरत सईद बिन आमिर रो पड़े, रो कर कहने लगे, हुजूर उसकी वजह यह है कि मेरे पास एक ही जोड़ा है, मेरे पास एक ही लिबास है, हफ्ते में एक दिन मैं कपड़े धोता हूँ, इनको खुश्क करने के लिए बाहर धूप में रख देता हूँ, जब अपने कपड़े धो के इनको खुश्क करने के लिए बाहर रखता हूँ तो हुजूर मुझे बीवी के कपड़े पहनने पड़ जाते हैं, मैं अपनी ज़ौजा का कपड़ा पहन के दिन गुजारता हूँ। हुजूर किसी औरत के कपड़े पहनकर बाहर आते हुए मुझे खुद को भी शर्म आती है। बस यही वजह है कि मैं गरीब सा आदमी हूँ, एक ही सूट है मेरा, और जब इसे धोने की बारी आती है तो मैं ये उतारता हूँ, अपनी बीवी के कपड़े पहन लेता हूँ, बस यही वजह है हुजूर। ये सुनने के बाद लोगों के कलेजे फट गए। कहा, बस करें, चौथे सवाल का जवाब ना दें, कहीं हमारा जिगरा फट भी ना जाए। आखिरी सवाल का जवाब हजरत सैयदना उमर फारूक ने पूछा, फरमाया, बताओ कभी कभी रोते हो, बेहोश क्यों हो जाते हो? कहने लगे, हुजूर मेरी उम्र 40 साल की थी जब मैंने कलिमा पढ़ा था,
40 साल मुझसे बड़े बड़े गुनाह हुए, मुझसे बड़ी बड़ी गलतियां हुई। हुजूर जब वो 40 साल की खताएं याद आती हैं, जब वो 40 साल के काले कारनामे मुझे याद आते हैं, जब वो 40 साल की गलतियां याद आती हैं, तो ख्याल आता है कि कहीं कयामत वाले दिन अगर रब ने मुझसे पूछ कुछ कर भी ली, अगर अल्लाह ने मुझसे कुछ पूछ लिया, मैं तो एक पल का भी हिसाब नहीं दे सकूंगा। हुजूर जब वो गफलत में गुजरे 40 साल मुझे याद आते हैं तो मुंह से निवाला निकल पड़ता है। जब वो 40 साल मुझे याद आते हैं हुजूर मैं रोता हूँ तो बेहोश हो जाता हूँ। अब लोग भी रो रहे थे, हजरत सैयदना उमर फारूक भी रो रहे थे। उसके बाद हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गवर्नर हजरत सईद बिन आमिर का हाथ पकड़ा, बुलंद किया, फरमाने लगे या अल्लाह मेरे नबी की उम्मत को इस तरह के कुछ और भी गवर्नर अता कर, अल्लाह अकबर, कुछ और भी गवर्नर दे दे। हाय मैं दुआ करता हूँ ओ मेरे करीम रब, हजरत उमर फारूक जैसा हुक्मरान, सईद बिन आमिर जैसा गवर्नर हमें अता कर दे, हमें भी अता कर दे, जो तेरे नबी की उम्मत के दुखड़े सुने, दर्द सुने, उनके दर्दों को अपने दर्द समझे, नबी की उम्मत के दुखों को अपने दुख समझे। हजरत सैयदना उमर फारूक की तरह ऐलान करें कि अगर मेरी हुक्मरानी में कोई प्यासा कुत्ता भी मर गया तो उसका भी उमर को हिसाब देना पड़ेगा। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के दूसरे पहर, रात की तन्हाइयों में मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे कि कहीं कोई प्यासा ना सो जाए, कोई भूखा ना सो जाए। ए बंदे तेरी गली में अगर कोई शिया रहता है, वहाबी रहता है, देवबंदी रहता है या कोई गैर मुस्लिम रहता है, उसका हिसाब वो खुद देगा। लेकिन अगर रोटी ना मिलने की वजह से रात को भूखा सो गया, ए बंदे उसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना कीमती सुकून छोड़कर रात के दूसरे पहर मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई रोटी खाए बगैर न सोया हुआ हो। ये सब क्यों करते थे? इसलिए आपको पता था कि इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती, नमाज उस मकाम तक नहीं पहुंचाती, रोजा उस मकाम तक नहीं पहुंचाता, हज ज़कात उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीब की खिदमत पहुंचाती, नमाज उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीब की खिदमत पहुंचाती, इबादत उस मकाम तक नहीं लेके जाती जहां गरीब की खिदमत लेके जाती है। गरीब की खिदमत में अल्लाह ताला कितना खुश होता है। हुजूर की गरीब उम्मत की मदद करो, इनसे प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर, इनके दर्दों को अपने दर्द समझो, इनके दुखड़ों को अपने दुखड़े समझो। अगर मैं आप लोगों के बच्चों से प्यार करूं तो मैं आपको कितना अच्छा लगूंगा, और अगर आप मेरे बच्चों से प्यार करें तो आप मुझे कितने अच्छे लगेंगे। तो जब हम सब अपने नबी की उम्मत से प्यार करेंगे तो अपने नबी को कितने प्यारे लगेंगे।